Now today we are going to start our unit number 2, that is quantum mechanics. Now we know that there is a classical mechanics and quantum mechanics. In our standard 12 we have studied that the wave mechanics is called as classical mechanics, and from 1900 and 1905 Max Planck, who was working on black body radiation, found that there is frequency based energy distribution of a perfectly black body. According to classical theory or electromagnetic wave theory proposed by Maxwell, it was found that whenever radiation or light is emitted from any source, it emits continuously with all wavelengths and in all possible directions. Similarly, whenever radiation in the form of electromagnetic waves is incident on any particular material, then the atomic oscillators of that material, that is the atoms which are in the state of vibration, can absorb continuously any arbitrary amount of energy. But during the energy distribution of black body radiation, Max Planck found that at certain wavelength there is suddenly a maxima in intensity of emitted radiation, due to which his experimental results were not supported or verified by the classical theory or Maxwell's theory of electromagnetic radiation. So in Maxwell's theory of electromagnetic radiation, it is considered that the intensity of light is proportional to square of the amplitude of electric field vector. If the amplitude of electric field vector is larger, then the intensity and hence energy content of that wave will be large. And it is the reason why the emission and absorption is a continuous process. But during the experimental studies of radiation emitted by black body, Planck found that this condition cannot explain his experimental results. The result was somehow like that, at certain, say this is the wavelength and this is the emissivity, that is emissive power of a black body. It is found that at certain wavelength it has a sharp rise, right? The radiant energy has a very larger value. It means that energy emitted by the black body or absorbed by the black body at certain wavelength is maximum, and below and above that wavelength it has a very nominal or minimum value. So this particular effect, which was experimentally obtained by Max Planck, that cannot be explained with the help of what? Classical theory. Then he started thinking that if I am getting the things practically, then there should be some correction made into the theory, and he proposed a new concept. The concept is that जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स रहेंगे किसी भी मटेरियल के, चाहे ब्लैक बॉडी हो या कोई भी एब्जॉर्बिंग या इमिटिंग मटेरियल हो, उसके जो एटॉमिक ऑसिलेटर रहते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल के फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं. एंड इज दोज डिस्क्रीट यूनिट और packets of energy are known as quantum of energy, and energy carried by one such quantum is given by E equal to h nu, where nu is the frequency and h is a constant called as Planck's constant. This is the radical departure from classical theory के एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है किसी सरफेस के ऊपर में वो डिसकंटिन्यूअस वे में हो रहा है. एनर्जी इज कैरिड आइदर एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल, स्मॉल यूनिट, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ वन सच क्वांटम E is equals to h nu. If from a source continuously the energy is emitted, then the total radiant energy, that is
total energy emitted or absorbed, total radiant energy by atomic oscillator is integral multiple of this quantum of energy. That is, it is equals to n times h nu, where n is the integer 1, 2, 3. It cannot be a discrete number. It cannot be a fractional number. It is a discrete or complete number, and that's why the name quanta or quantum is given. That is, energy is emitted in complete packets, not of any arbitrary or ordinary amount, and due to this complete small packets or unit, the emission and absorption is a discontinuous process. जब भी डिसकंटिन्यूस रहेगा प्रोसेस, तभी जो हमने भी आपको ग्राफ बताया था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर में एक यूनिट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकलेगा। तो ऐसे उसको मल्टीपल ऐसे स्पीक्स वहाँ पर या स्पाइक्स वहाँ मिल रहे थे या मैक्सिमा मिल रहा था। तो उसके लिए मैक्स प्लैंक assumed that the radiant energy by any atomic oscillator, it is not emitted or absorbed in a continuous process, but it is in discontinuous manner, and energy is radiated in the form of discrete complete unit or packet of energy called as quantum of energy, and energy of one such quantum is given by h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency, and the total energy radiated by atomic oscillators is given as n times h nu, where n will be either 1, 2, 3 and so on. It will be a complete number, not a fraction. So this was the quantum mechanical hypothesis proposed by Max Planck. There were so many questions were raised on this particular theory. If you are saying that it is a packet of energy, then where that packet of energy will be there on the wave, and why it has the same frequency as that of waves? So these questions were not answered properly or satisfactorily by Max Planck on those days, but by assuming this, he has proved that the experimental results which he got on black body radiation are satisfied properly using this particular theory. Now, this is your Planck's quantum theory. 2 points you have to remember here: that the atomic oscillator of any surface, that is black body, it cannot emit the energy in continuous way. It emits energy in a discontinuous manner. It emits the energy is emitted in the form of small discrete unit or packet of energy called as quantum of energy. The energy possessed by such one quantum is given by h nu. H is Planck's constant, nu is the frequency, and the total radiant energy from an atomic oscillator is n times h nu, where n is an integer. It cannot have a fractional value. But assuming energy to be a packet of assuming radiation to be in the form of packet of energy, he says that emission and absorption is a discontinuous process. Now, Einstein made so many refinements or extension to Planck's quantum theory. We will discuss those refinements proposed by Einstein one by one. तो इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, explain Einstein's extension to Planck's theory. Einstein's extension to Planck's theory. एक्सटेंशन के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज आइंस्टाइन्स कंट्रीब्यूशन. आइंस्टाइन्स एक्सटेंशंस और कंट्रीब्यूशंस टू प्लैंक्स थ्योरी. At the same time, when Max Planck was dealing with his experiment on black body radiation, Einstein discovered photoelectric effect. And again, photoelectric effect was not be explained by considering the classical wave theory. He was also ये भी थोड़ा सा परेशानी में था आइंस्टाइन भी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. तो उसको जैसे ही मैक्स प्लैंक ने क्वांटम पिक्चर पेश किया रेडिएशन का, उसने इसको यूज़ किया और पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी उससे बना डाली, और जो एक्सपेरिमेंटली 100% वेरीफाइड है, जो आपने स्टार्ट 12 के अंदर में पढ़ा होगा कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कैसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर में आता है तो इमीडिएटली विदाउट एनी टाइम लैग वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, और कैसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है. सारी चीज़ें आपने स्टैंडर्ड 12 के अंदर में पढ़ी हुई है. तो वहाँ से ही उसके पास में वो रिजल्ट्स थे. जैसे ही प्लैंक्स थ्योरी आई, उसने प्लैंक्स थ्योरी के अंदर में बेस्ड अपॉन हिज एक्सपेरिमेंटल
फाइंडिंग्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने प्लैंक्स के थ्योरी के अंदर में 3-4 रिफाइनमेंट्स किए, 3-4 एक्सटेंशन, 3-4 कंट्रीब्यूशंस को दिए। हम उसको वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो पहला कंट्रीब्यूशन था इसको आप समझिए अच्छे से, कि जो फोटोन जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का पैकेट है, सबसे पहले आइंस्टाइन ने उसको एक आइडेंटिटी दे दी और उसका नाम रख दिया फोटोन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट और लाइट पार्टिकल। फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना, ऐसे उसे नाम दे दिया फोटोन। इट इज ही ड्राइव्ड इट फ्रॉम फोटो, दैट इज फोटोन। कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको एक आइडेंटिटी दे दी और ये कहा कि इसको आप फोटोन बोलो। तो आइंस्टाइन हैज गिवन आइडेंटिटी टू क्वांटम ऑफ एनर्जी बाय नेमिंग इट फोटोन। सेकेंड जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो ये कि अब फोटोन के पास में एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। सपोज ये एनर्जी की वैल्यू होती है, और थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो 10 जूल होती है, राइट। एंड ये लाइट वेव के ऊपर भी चल रहा है, तो ये आपका लाइट वेव है, दिस इज योर लाइट वेव। अब इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप कंसिडर कर लो कि देयर आर 5 पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट दिस वेव फ्रंट। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दिस energy of 10 joule is not evenly distributed on every point of the wave front। क्या बोलता है, वेव फ्रंट के सारे पॉइंट के ऊपर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये जो फोटोन का एनर्जी है इट कॉन्सेंट्रेट एट सर्टन पोजीशंस, और ये एक पैकेट के फॉर्म में ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक पैकेट के फॉर्म में, पैकेट यहाँ से निकला, सपोज यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से पैकेट निकला ऐसा वेव के फॉर्म में जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो एक पोजीशन रहेगी, उसकी उस पोजीशन पर टोटल टाइम जूल की जो एनर्जी रहेगी वो कॉन्सेंट्रेट करेगी, और यहाँ से शावर के जैसे फोटोन चलेगा, शावर के जैसे अगर कंटिन्यूसली सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट हो रहा है तो इट विल बी मूविंग लाइक अ शावर ऑफ फोटोन इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड एवरी फोटोन 10 जूल इज concentrated at certain point. तो second contribution was that the photon energy is not evenly distributed but it remains concentrated at certain point as the photon travels along the wave. So this was the second contribution. Third contribution is that energy is proportional to frequency, not proportional to intensity of light. ये बहुत बड़ा contribution है। Higher is the frequency of radiation, its energy will be higher. Whereas intensity is proportional to number of photons emitted by any source। जितने ज़्यादा फोटोन सोर्स से मीट होंगे उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन एनर्जी कंटेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। दिस वाज द थर्ड कंट्रीब्यूशन। द फोर्थ कंट्रीब्यूशन इज दैट he tried to explain the emission and absorption to be a discontinuous process। तो उसके लिए उसने क्या बताया कि जब भी कोई फोटोन, अपने चौथे पॉइंट में बताया, जब भी कोई फोटोन किसी मैटर के पार्टिकल के साथ में, किसी एटॉमिक ऑसिलेटर के साथ में कोलाइड करता है तो अपनी पूरी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है और वैनिश हो जाता है। सपोज ये आपके पास में कि एक एटम का एक एटम आ गया, इसके ऊपर में कि फोटोन जो है यहाँ से आ रहा है, जैसे ही फोटोन इसके ऊपर में आता है इट इम्पार्ट्स ऑल ऑफ एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर एटम, मैटर के पार्टिकल को दे देगा और इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एंड देयरफॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज डिसकंटिन्यूअस। दिस वाज फिफ्थ कंट्रीब्यूशन। फोर्थ कंट्रीब्यूशन, फिफ्थ कंट्रीब्यूशन इज दैट कि अब किसी सोर्स से, एक सोर्स सपोज आपके पास में, यहाँ से रेडिएशंस निकल रहे हैं, यहाँ से लाइट निकल रही है, तो कंटिन्यूसली इस सोर्स से फोटॉन्स निकल रहे हैं। पहले एक फोटॉन निकलेगा, फिर दूसरा फोटॉन निकलेगा, फिर तीसरा फोटॉन निकलेगा, फिर चौथा फोटॉन निकलेगा। तो ये दो सक्सेसिवली निकलने वाले फोटॉन के बीच में जो टाइम लैग रहता है वो 10⁻⁻9 सेकंड से भी छोटा रहता है। इट इज सो स्मॉलर कि हमारी जो आंखें हैं उस डिफरेंस ऑफ टाइम लैग को नहीं समझ सकती या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूअस आ रही है, वेयरएज हर एक के बाद एक निकलने वाले फोटोन के बीच में एक टाइम लैग रहता है, बट आवर आईज कैन नॉट डिटेक्ट इट, एंड देयरफॉर दो लाइट इज इमिटिंग इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, हमको ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली हमारे पास में आ रही है। सो दीज आर द 5 डिफरेंट एक्सटेंशंस और कंट्रीब्यूशंस और रिफाइनमेंट प्रपोज्ड by
Einstein to make the complete understanding of Planck's quantum theory. नाउ अब यहाँ पर एक लोकलाइजेशन हो गई है फोटोन की. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. एक फोटोन की लोकलाइजेशन हो गई है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी की पूरी एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है जिस वेव जो वेव जो कैसी है उस वेव के ऊपर में वो जो कंसंट्रेटेड लोकेशंस हैं जहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेट की हुई है वो आगे जा रही है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में जा रही है, और उन आइडेंटिटीज वो जो लोकलाइज्ड जो वहाँ पर आइडेंटिटीज है जिनको आप फोटोन नाम दे रहे हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, उसका एक एनर्जी है, एंड देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. It behaves like a particle, and this is how one can say that there is a wave particle duality in light. अब जब वेव पार्टिकल डुअलिटी है तो अब हम फोटोन के लिए कौन कौन से पार्टिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर सकते हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, राइट, ये ध्यान से आपको याद रखना है. सिंस जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन का जो एक्सटेंशन है वो ये बताता है कि फोटोन का स्पेस में एक लोकलाइजेशन है, उसके पास में एक एनर्जी है और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वी कैन से दैट इट एक्ट्स और बिहेव्स लाइक अ फोटोन, लाइक अ पार्टिकल. फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल जब ऐसा होता है तो आप उसके साथ में पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी अट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो कौन कौन सी पार्टिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है? नंबर 1 इज एनर्जी. जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल प्रॉपर्टीज है वो हम पहले लेंगे. We know that energy of a photon is equals to h nu, right? Okay, this is equation number 1. This is the first form of energy which is a particle property. Now we know that omega is equals to 2 pi nu, therefore nu is equals to omega upon 2 pi. Therefore by this particular equation आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Energy is equals to h omega upon 2 pi. h upon 2 pi को लिखा जाता है h cross and therefore omega. So this is the second form in which you can represent energy. So these smaller expressions are very important. These expression actually builds the entire quantum mechanics. आगे आपके समझ में आएगा कैसे बिल्ट होता है इसके अंदर में. तो पहले हमने देखा एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, हमने देखा एनर्जी इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा. एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, राइट. तो यहीं पर हम यूज करेंगे. देयरफॉर न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा. देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 1 हमको मिलेगा E इज इक्वल्स टू एच सी divided by lambda. So these three are the different forms or expressions in which energy of photon, which is a particle property, can be expressed. E equal to h nu by using this substitution, E equal to h omega upon 2 pi or h cross omega, and C is equals to new lambda. ये substitution जब हम करेंगे तो E equal to h c upon lambda, ये आपको याद रखना है. This is first particle property. Now second particle property that can be attributed to photon is mass. The second property number 2. We know that photon can never be at rest. Light rest पर नहीं हो सकती, इसलिए rest mass of photon is equals to 0. जब भी फोटोन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा. जब भी कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसे आप कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. उसे आप क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. एंड फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, वेयर m इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्टिक मास. क्या बोलते हैं इसको आप? relativistic mass. Therefore photon has relativistic mass given by m is equals to E upon c square. This is the first form. अब आप यहाँ पर 3 फॉर्म है. E equal to h nu, right, E equal to h cross omega and E equal to h c upon lambda. आपको 3 और relativistic mass of photon के एक्सप्रेशन मिलेंगे. पहला मिलेगा m is equals to h nu, आपके पास से मिल रहा है. E equal that will be एच न्यू डिवाइड बाय c स्क्वायर, ये एक मिलेगा. ये 2 फॉर्म हो गए. तीसरा आप यहाँ से निकालेंगे
E इज इक्वल्स टू क्या आपके पास में E इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा, तो आपको मिलेगा H क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। ये आपका हो गया तीसरा फॉर्म, 1 2 3। चौथा फॉर्म क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू, चौथा फॉर्म क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल्स टू सॉरी आई एम सॉरी इट इज M इज इक्वल्स टू क्या है E upon C square, तो M is equals to E upon C square, M equal to E upon C square, therefore again M is equals to value of E is HC divided by lambda and it is divided by C square, so you will find M is equals to this C and C cancel, H divided by lambda C. So these are the different four forms, 1 2 3 4 forms of what, the mass of photon. Keep in mind, it is relativistic mass. Photon can never be at rest, therefore its rest mass will be equal to 0. It has always moving with the velocity of light, therefore it has relativistic mass, and according to Einstein's energy mass relation, E equal to mc square, where m is relativistic mass, therefore relativistic mass of photon is given by m is equals to E upon c square. अभी E के 1 2 3 वैल्यूज यहाँ से आप डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एनर्जी के मास के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. Now our third property is the velocity. We know that photon are constituent of light wave, therefore photon always travel with velocity of light which is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So we got mass, we got velocity. Our fourth जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी लीनियर मोमेंटम. फोर्थ पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन इज लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं P से. अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. हमारे पास में मास कौन सा है, देयरफॉर P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी कौन सी है, C. अब मास के लिए 1 2 3 4 फार्मूला हमारे पास में है, एंड देयरफॉर जो मोमेंटम मिलेगा P इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्म क्या मिलेगा मोमेंटम का, पहला फॉर्म आपको मिलेगा मोमेंटम का, हम इसको नहीं लेते हैं, ये लेंगे, दैट इज h न्यू डिवाइड बाय c स्क्वायर इंटू c. इट विल बी इक्वल टू h न्यू डिवाइडेड बाय c. ये पहला फॉर्म मिला. दूसरा फॉर्म मिलेगा मोमेंटम का, हमारे पास में दूसरा फॉर्म क्या है, h क्रॉस ओमेगा डिवाइड बाय c स्क्वायर इंटू c, दैट विल बी इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय c. तीसरा फॉर्म मिलेगा p इज इक्वल्स टू मास क्या आपके पास में h डिवाइडेड बाय lambda c into c square, that will be equal to h, check it out, m is equals to what, h upon lambda c into, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, इसको आप चेक करो, mass is equals to hc upon lambda, this is energy divided by c square, so it will be equal to h upon lambda c, और यहाँ पे आपको मिलेगा that is c. दिस इज मास h अपॉन लैम्डा c इंटू c, तो c कैंसल, आपको मिला h अपॉन लैम्डा. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म इन विच वी कैन एक्सप्रेस द लीनियर मोमेंटम. तो दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल प्रॉपर्टीज एज फार एज फोटोन इज कंसिडर्ड. नाउ फिफ्थ पार्टिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर, आपको सिर्फ उसको लिखना है. पांचवा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल नेचर. ये पार्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आती है इलेक्ट्रिकल नेचर, एंड वी नो दैट लाइट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिकली photons are neutral, they cannot be affected by electric field or magnetic field. Now one more property which you have to remember, sixth property is angular momentum. Angular momentum और spin, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, एंड फोटोन हैज अ स्पिन ऑफ 1 यूनिट. ये सिर्फ आपको याद रखना है, फोटोन हैज अ स्पिन ऑफ 1. यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन करता है, तो आप लेते हैं उसका +1/2 स्पिन और -1/2, लेकिन फोटोन का जो स्पिन रहेगा वो 1 यूनिट का रहेगा. तो दीज आर द 6 पार्टिकल प्रॉपर्टीज. आउट ऑफ दीज 6 द 4 आर इंपॉर्टेंट. जो मैंने पहली 4 बताई, एनर्जी, मास, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, इनके जो फार्मूले हमने छोटे छोटे निकाले हैं, दिस फार्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है. ये मेरा छोटा सा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ. अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसके अंदर में 2-3 छोटे छोटे रिलेशंस आपको बताऊँगा, और उसके बाद में हमारे सबसे बड़ा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट, वो हम स्टडी करेंगे. ओके, यू वॉच दिस पर्टिकुलर lecture and try to prepare
your notes, I have covered 3 questions here. One is Planck's hypothesis, second is Einstein's contribution to Planck's theory, and third is particle properties of photon. Okay, thank you.